It's my privilege to extend a warm welcome to all of you to today's webinar hosted at the RCVP Narona Academy of Administration and Management in Bhopal, Madhya Pradesh. We are specially pleased to welcome not only the trainee officers of the 121 foundation course, but also the deputy collectors of the induction batch and all the Karam yogis who had joined us virtually. It is being considered that your presence here reflects a commitment to learning, growth, and service to the nation. And we look forward to the contribution you all will make in the years ahead. Now, in the series of welcoming the guest, I first request my director of the Academy, Shri Mujibur Rahman Khan Sir, to welcome the chief guest of the day, our Honorable Respected Director General Sir, with the sapling, Angvastra, Gondi painting and the memento. Sir. I now invite our Honorable Respected Director General Sir to welcome our chief guest of the day, Dr. Yogesh Verma Sir, the eminent cardiologist not only of Madhya Pradesh but across India, with the Angvastra Gondi painting, memento of the RCVP Narona Academy, and a sapling. Sir. Thank you so much, sirs, and my dignitaries. It is my privilege to introduce Professor Dr. Yogesh Verma Sir, an eminent cardiologist, academician, and a medical teacher of great fame, whose career has been dedicated to advancing both clinical medicine, prevention of the heart disease, and public health awareness. Sir is the former professor and head of the cardiology department, director professor and cardiac science center and dean of the Gandhi Medical College located at Bhopal, Madhya Pradesh. Sir had led with vision and commitment, strengthening academic standards and nurturing generations of young doctors. Sir holds an MBBS MD in medicine from the Gandhi Medical College, Bhopal, and DM in cardiology from the prestigious Christian Medical College, Vellore, that's in the Madras University. Sir's training has been further enriched internationally with advanced programs at Mount Sinai Hospital, New York, the University of Alabama at Birmingham, and the Hoag Heart Institute, California, USA, and a full-time pediatric cardiology fellowship at the New Children's Hospital in Sydney, Australia. He is both an adult and a pediatric cardiologist. Sir is having a pioneer in cardiology, education, and research. Sir has contributed extensively to national and international publication and has been equally passionate about community health, devoting significant efforts to creating public awareness on the prevention of heart disease. Sir has also emphasized the importance of controlling the risk factors such as hypertension, smoking, tobacco use, alcohol consumption, diabetes, and the role of regular exercise and lifestyle management in preventing cardiovascular diseases. Currently, after his tenure at the Gandhi Medical College, Bhopal, Sir continues his services as a consultant cardiologist in Bhopal, where he remains deeply committed to patient care, education, and preventive cardiology. Sir is a blend of clinical expertise, academic contributions, and community service, which truly sets him apart as a leader in his field. Please once again join me, everyone present over here in the Academy and the ones who had joined us virtually, in extending a warm welcome to Yogesh Verma Sir. Today, we will be conducting a webinar on the topic Lifestyle Modification to Secure Your Heart,
And now I invite Dr. Yogesh Verma sir to give a brief introduction about the topic. Sir. धन्यवाद प्रिया। नमस्कार। यहाँ उपस्थित डीजी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश भोपाल, समस्त श्रोतागण एवं युवा देवियों और सज्जनों, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं शायद वहाँ जाके बैठ जाऊँ और कोई और बोले और मैं उसको सुनूं। ये एक टीचर की बहुत वीकनेस होती है कि वो अपने विद्यार्थी तो सुने, या जो उसको सुनने आए हैं उनको भी सुने, और सुन करके एक संयुक्त रूप से जो भी सीखते हैं उसका मिश्रण बना करके उसको ज़िंदगी में उतारें। मैंने हमेशा ये धारणा मानी है कि लर्निंग इज़ ए ऑन गोइंग प्रोसेस, वो कभी समाप्त नहीं होता। आपका कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस मीटिंग के बाद भी मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख के जाऊंगा। और यहाँ भी जो आपसे बात कर रहा हूँ वो भी मैंने किसी न किसी से सीखा ही है। तो मैं जो बोलूँगा इसको एक तरफा मत समझिएगा, आप उसमें इक्वली पार्टिसिपेट भी करिएगा। कई जगह हो सकता है मैं आपके स्तर पर कोई चीज़ आपको अच्छे से नहीं बता पाऊँ जो हर क्लासरूम में होता है, तो ऐसा आपको कभी भी महसूस हो तो आप उसको क्लैरिफाई करिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने उसको ध्यानपूर्वक सुन करके अपने डाउट्स को क्लियर किया। तो आज हम जो टॉपिक चुना है वो बहुत ही अच्छा है, और उससे अच्छा जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि वर्क आउटपुट देने के लिए मात्र एक स्वास्थ्य को अच्छा समझना ही केवल एक मात्र टूल नहीं है। यंग एज में वैसे भी शरीर बहुत मजबूत होता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, उनको अगर लेमैन टर्म्स में कहें वो पुशी हार्मोन्स होते हैं। सब ठीक है, हम पत्थर भी तोड़ देंगे, हम सब कर लेंगे, और वो फीलिंग होना चाहिए क्योंकि वो उम्र के साथ साथ रहती है। पर इस बात का भी आकलन होना चाहिए कि उसके पीछे हमारा शरीर हमारा साथ देगा कि नहीं। ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, और सबसे परफेक्ट मशीन है जो आज तक बनी है। मतलब जो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सके, जो मशीन कंप्यूटर्स क्रिएट कर सके, जो मशीन चांद तक इंसान को भेज सके, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा ह्यूमन कंप्यूटर है। पर इन सब के पीछे जो एक मजबूत चीज़ है वो है एक अच्छा स्वास्थ्य। आप लोगों में से कईयों के मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि शरीर में इतने सारे अंग होते हैं, सिर्फ हार्ट ही क्यों? क्या एक होता है हार्ट इसलिए? किडनीज 2 होती हैं, आँख 2 होती हैं, दांत 32 होते हैं। इसकी बात उतनी नहीं होती है जितनी हार्ट की होती है। मूल कारण ये है कि ये ऑर्गन जो है जिसको हम हार्ट कहते हैं, इसके 2 पहलू हैं। शायर उसको बोलता है सीट ऑफ रोमांस, दिल दिया दर्द लिया हम दिल दे चुके सनम, यंग एज में बोलते हैं। ऐसी कुछ वाक़या तो होता नहीं है, केवल भावना और इमोशंस के लिए हार्ट को कोट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भावना और इमोशंस हार्मोन मीडिएटेड होते हैं, और हार्मोन के जरिए ही हम इन चीज़ों को कहते हैं। अतः ये भी ज़रूरी होता है कि हम अपने शरीर में निरंतर अच्छे हार्मोन्स को रखें ताकि हार्ट का फंक्शनिंग, गवर्नेंस वो ठीक रहे।
अगर शरीर में देखेंगे तो हार्ट एक मियरली इट्स ए पंप, एक पंप है जिसका काम है, जिस खून में ऑक्सीजन निकल जाती है जिसको वीनस ब्लड बोलते हैं, वो आकर के एक तरफ हार्ट के साइड में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से वो लंग्स में दोनों तरफ जाता है, लंग्स उसको ऑक्सीजन देते हैं और फिर वो खून ऑक्सीजन से भरपूर होके लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है और लेफ़्ट साइड से पूरे हमारे शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो लाइफ में इन वूम सबसे पहले काम करना शुरू करता है माँ के पेट में और सबसे आखिरी तक काम करता है और उसका कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं है। वो एक ही बार शुरू होता है और एक ही बार समाप्त होता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस हार्ट में कितना बर्डन होता होगा कि जो भी हमारी उम्र है उसमें कितने बार 70-72 टाइम्स पर मिनट का एक उसका नॉर्मल रेट होता है, उससे वो निरंतर चलता है। हम जिस उम्र तक रहें वो बराबर चलता रहेगा। और एक इंटरेस्ट की बात है कि हार्ट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो जाता है 3 धमनियाँ या आर्टरीज़ के माध्यम से जाता है, जिनको कॉरोनरी आर्टरीज़ कहा जाता है। और आप कॉरोनरी आर्टरीज़ को भी देखिए ईश्वर ने कैसा बनाया है कि पहले हार्ट पूरा खून शरीर में फेंक देता है और जो बचता है वो बचा हुआ खून फिर कॉरोनरी आर्टरीज़ लेती हैं। हिंदुस्तानी गृहिणी की तरह है, सबको खिलाने के बाद खाती है। वो खून लास्ट में कॉरोनरी आर्टरीज़ में जाता है, उसमें भी हार्ट खुश रहता है और निरंतर कार्य करता रहता है। परंतु जब हार्ट बीमार होता है तो हार्ट हैज़ इट्स रीजंस, वैसे बीमार नहीं होता है, उसके कारण होते हैं। कारण को 2 भागों में आप सोच सकते हैं, एक होता है प्राकृतिक कारण और एक होता है जो हम उसको दुख देते हैं। प्राकृतिक कारण का एक प्रिवेंशन एस्पेक्ट होता है और जो हम खुद उसको हार्ट को बर्डन करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से एक चलते हुए हार्ट को चलने का प्रोत्साहन दें, ना कि रुकने का, ना कि बीमार होने का। और आप जानते हैं कि जब बीमार होता है हार्ट तो क्या हो सकता है, एकाएक रुक गया, मृत्यु हो गई, डैमेज हो गया। तो हार्ट की जो पावर होती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हार्ट एक पंप होता है, तो उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए उदाहरण के लिए एक पंप की हॉर्स पावर 5 है, बीमार हो गया तो 3 हो गई, कम हो गया तो उसका जो पंपिंग एक्शन है वो इफेक्ट हो गया। जितना उसको ऑक्सीजन रहित खून शरीर को देना वो पूरा नहीं पहुंचता, तो उसमें सांस फूलना, थकान होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन एस्पेक्ट पे अब आते हैं कि हमको, पहले तो मैंने कहा प्राकृतिक कारण 2 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ चीज़ें हमको ऐसी होती जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। एक होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कि माँ के पेट से ही बच्चा पैदा हुआ, उसको हार्ट डिजीज़ है, वो कम मालूम पड़ता है, उसका क्या उपचार है। आपने ये भी सुना होगा कई बार ब्लू बेबीज़ पैदा होती हैं, उनकी नस उल्टी होती है, वो भी हार्ट की बीमारी की श्रेणी में आता है। जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं प्री स्कूल एज में, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में गठियाबाद या रूमेटिक फीवर होता है, और रूमेटिक फीवर में जॉइंट्स में पेन होता है, सूजन होती है, और ये यंग गर्ल्स में 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉमन है। और मात्र इसलिए कि जोड़ दुख रहे हैं, बुखार है, तो ठीक है कोई दवाई छोटी मोटी खा लीजिए और वो म्याद से ठीक हो जाता है। इलाज करिए या ना करिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि रूमेटिक फीवर
2 से 3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाएगा। एक जोड़ दुखा, दूसरा दुखा, तीसरा दुखा, ऐसे दर्द होता रहता है और 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और इसी चीज़ को मान लीजिए कि जो कम पढ़े लिखे चिकित्सक या ऐसे चिकित्सक जो आपको अंधविश्वास में भरोसा देते हैं, वो आपसे पहले ही कह देते हैं कि दवा करिए या ना करिए, वो 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वो 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। पर उसके लिए कहावत है, इट लिक्स द जॉइंट्स एंड बाइट्स द हार्ट। आपको जोड़ में दर्द देगा और कुछ माह बाद में आपके हार्ट के वॉल्व खराब हो जाएंगे। एकदम भी खराब हो सकते हैं, पर कुछ दिन बाद मालूम पड़ेगा, 1 साल के बाद, कि आपका वॉल्व धीरे धीरे सिकुड़ने लगा है और वॉल्व का ऑरिफिस छोटा हो गया है। फिर आप जब चेकअप के लिए जाते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि ये रूमेटिक फीवर की वजह से हुआ है, जिसका कि अगर समय पे इलाज हो जाए तो आप अपने हार्ट को सेव कर सकते हैं। तो ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक है। दूसरा, आप सुनते हैं वायरल फीवर हो रहा है, जगह जगह वायरल फीवर हो रहा है। ये मान के चलें कि किसी भी वायरल फीवर को या इन्फेक्शन जो बॉडी में होता है उसको हल्के से ना लें। अगर बुखार होता है तो उसका एक अंश आपके हार्ट के ऊपर भी जाता है। उसमें एक बीमारी होती है वायरल फीवर में, उसको बोलते हैं वायरल कार्डियोमायोपैथी। वायरल कार्डियो यानी हार्ट, मायो मतलब मसल, पैथी मतलब ख़राब हो गई। तो उसमें हार्ट की मसल्स ख़राब हो जाती हैं और हार्ट ऐसा फैल जाता है और उसकी हॉर्स पावर या पंपिंग एक्शन कम हो जाता है। तीसरा एक फैक्टर है जिसके बारे में बहुत कम ज्ञान रहता है कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में अक्सर हार्ट अपने आप फैल जाता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से। उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम या डिलीवरी के बाद हुई कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट मसल उसमें ख़राब हो जाती है। इन कारणों से आप बच सकते हैं, अवेयरनेस हो किसी हद तक बच सकते हैं। पर जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर कई बार मुश्किल होती है और बीमार होने के उपरांत ही आपको मालूम पड़ता है कि आपका हार्ट एक तरीके से अफेक्ट हो गया है। दूसरा जो है जिसको मैं खासकर एम्फेसिस करूँगा, जो आपके हाथ में है, उसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या आता है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, तम्बाकू टोबैको च्यूइंग, एक्सेस एल्कोहल, ओबेसिटी। ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इनको आप कंट्रोल करके कंट्रोल में ला सकते हैं। कुछ होते हैं उनको कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो आप कितने भाई कोशिश करें आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में एक होती उम्र। मैं 75 वर्ष से 25 साल का नहीं हो सकता, और शरीर का अंग, अगर शरीर 75 वर्ष का है तो शरीर का हर अंग 75 वर्ष का है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल है, हम उम्र को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, पर उम्र को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहेंगे, जो है सो है। और दूसरा होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई हार्ट डिजीज़ का जीन है, आप देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि परिवार में मालूम पड़ा कोई 20 साल में चला गया, कोई 25 साल में चला गया, कोई सोते सोते सुबह नहीं उठा। तो ये जीन होता है और जीन के अंदर प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ यानी प्री मैच्योर आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं। चाहे आप दुबले पतले हों, आप कोई भी काम नहीं करते हो, सिगरेट, शराब, बदन ठीक है, रेगुलर लाइफ स्टाइल है, सब कुछ कर सकते हैं, तो उसके बावजूद भी वो जीन रप्चर हो जाता है। पर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के लिए एक बहुत कहना चाहिए एक सावधानी वाली बात होती है कि मान लीजिए मेरे परिवार में उदाहरण के रूप पे अगर हार्ट डिजीज़ का जीन है, मेरे ब्लड रिलेशंस में से 4 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, जिसको अंग्रेज़ी में सडन डेथ कहते हैं।
तो अगर वो जीन हमारे पास है और अगर मैं उसके साथ में सिगरेट पीऊँगा, शराब पीऊँगा, शुगर को कंट्रोल नहीं करूँगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करूँगा, लेथार्जिक रहूँगा, कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये उस जीन के लिए एक कॉमन मैन्स लैंग्वेज में जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये चीज़ें उस जीन में खाद और पानी का काम करते हैं। एक बीज को आप अलमारी में बंद कर दीजिए, वो नहीं फूटेगा। उसको आप मॉइस्चर देंगे, खाद पानी देंगे तो फूट जाएगा। तो ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने कहा, ये जिसको होते हैं तो वहाँ पर जीन जो है वो प्रीमैच्योरली कम उम्र में वो रप्चर होता है या एक्टिव हो जाता है और हार्ट की आर्टरीज को क्लॉग यानी बंद कर देता है और उसमें आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो फिर घूम के वहीं आ जाते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, और वही आज का टॉपिक है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे होना चाहिए। ये भी मान लीजिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कोई सज़ा नहीं है। आप ये मान के चलें कि आपको सज़ा दी जा रही है, ये मत खाइए, वो मत करिए, ऐसे उठिए, वैसे बैठिए, नहीं। इट्स जस्ट एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लिविंग। आप रह रहे हैं उसी में रहिए। हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हमसे धीरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मीठा खा सकते हैं? क्या जवाब दिया जाए? पर जवाब तो देना पड़ेगा। आपके ना कहने से वो रुकने वाला तो है ही नहीं। आप उसका बिस्तर ढूंढोगे तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी, नीचे पार्ले जी के बिस्कुट मिल जाएंगे, नौकर को टिप दे करके कोई मीठा बुला के खा लेगा। तो उससे कहते थे हाँ भाई खा सकते हो, कल पूजा है सर, घर में लड्डू बनेंगे, लड्डू खा सकता हूँ? हाँ खा सकते हो। पहले हाँ करना पड़ता है और फिर ना करना पड़ता है। खा सकते हो, परिवार के सामने ही कहना पड़ता है, नहीं तो घर जाके हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे, बेटा बहू लड़ेंगे, पापा जी ने लड्डू खिला दिया, डॉक्टर साहब ने लड्डू खाने को कह दिया, और 4 जगह कहेगा कि ऐसे डॉक्टर को मत दिखाना, डायबिटीज़ को लड्डू परमिट कर देता है। तो उनसे कहा जाता है घर वालों से, सबसे पहले लड्डू इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, और इसके पहले वो जवाब दे, आप उसका जवाब दे देते हैं। आप इनके सामने सब लड्डू रख दीजिए, आप देखिए आधा खा के ही उठ जाएंगे। आपने उसका जवाब दे दिया, वो भी खुश हो गया। आपने अगले दिन पूछा फ़ोन करके पत्नी से, भाई कह, बोले सर उन्होंने आधा भी नहीं खाया, जरा सा मुंह में चाट के वापस कर दिया। पर अगर आप ना कहेंगे तो उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बिना खाए नहीं मानेंगे। और आपने उसको इनकरेज किया, खा सकते हैं, थोड़ा सा खा लेगा, उठ जाएगा। पोते की वर्षगांठ है, उनकी अपनी शादी की वर्षगांठ है, घर में केक बना हुआ है, उसी से केक कटवा रहे हो और उससे कहते हो कि आप केक मत खाइए। भाई कैसे संभव है? तो मैं कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं दे आर वेरी पुअर एडमिनिस्ट्रेटर्स। आप में से कई डिप्टी कलेक्टर्स होंगे, कई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का मेंटल जो आउटपुट है वो केवल एक ही है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। वो सामने वाले को सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को जो मैंने कहा वो कोई पनिशमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट ए बेटर, एक और अच्छा और उसी फ्रेमवर्क में रहने का एक ऑल्टरनेटिव है। तो चलिए वो देखते हैं कि हमको कैसे क्या करना चाहिए और क्या उसमें आसानी से किया जा सकता है, होम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। और आप एज फील्ड ऑफिसर्स, आप में से कई स्कूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे और आप लोग तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो पब्लिक से कांटेक्ट में भी रहेंगे, तो आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस ट्रेनिंग का एक एस्पेक्ट है। तो मैं कुछ सवालों के लिए तैयार हूँ मैडम, आपसे भी, ऑडियंस से भी, और जो आप पूछेंगे उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। Thank you so much, sir.
पहले तो मैं आपका इसलिए थैंक यू करना चाहूँगी बिकॉज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जब हमारे एक माइंडसेट होता है कि हम पता नहीं ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारा हार्ट सिक्योर, हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी यूज़ करनी पड़ेगी, समथिंग और द अदर वे. सो Ashley sir had told us in a very layman language कि by avoiding certain things and taking certain precautions, we can change our lifestyle in a better way. So thank you so much, sir. But आपने क्योंकि इतना अच्छा हमें brief किया, so we have got some set of questions which I'll be asking, and I invite my officer trainees and the ones who had connected us on the virtual mode. You all are welcome to ask the questions in between. सर मैं पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी दैट व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस विच कैन प्रोटेक्ट द हार्ट हेल्थ. सर देखिए, जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसमें पहले अपने आप को पहचानिए कि आपसे कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है. उसको खुद एडमिट करिए. ये कोशिश मत करिए कोई आपको पॉइंट आउट करे कि तुम सिगरेट पीते हो, तुम शराब पीते हो, तुम्हारा वेट ज़्यादा है, तुम वॉकिंग नहीं करते हो. ये एक्विजिशन के साथ इम्प्रूवमेंट नहीं होना है. इम्प्रूवमेंट होना है इंट्रोस्पेक्टिव, अपने आप से सोच करके क्या ये चीज़ सही है. क्या मैं अपने माता पिता के सामने शराब पी सकता हूँ? क्या मैं उनके सामने सिगरेट पी सकता हूँ? आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा. और ध्यान से देखेंगे कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर, तंबाकू के पैकेट के ऊपर, शराब पे, सब पे वार्निंग लिखा हुआ है. तो जो आदमी खरीद रहा है वो पढ़ा लिखा है, वो वार्निंग भी पढ़ रहा है, उसके बाद भी खरीद रहा है. तो सबसे पहले खुद का इंट्रोस्पेक्शन चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं. उसके बाद में जब वो डॉक्टर के पास आता है तो हम लोग हिस्ट्री में ये नहीं कहते हैं कि तुम शराब पीते हो, ये ऐसा नहीं पूछते हैं. उसको हमेशा कहते हैं भाई आपका खाना कैसा है, और खाने के साथ आप कैसे पास टाइम करते हैं, आपकी कंपनी कैसी रहती है. धीरे धीरे करके फिर वो कहेगा सर कभी कभी पार्टी होती है उसमें बियर पी लेते हैं. फिर बोलेगा सर कभी स्मोक भी कर लेते हैं. तो उनको फिर ये कहा जाता है भाई देखिए ये चीज़ अच्छी नहीं है और इसको छोड़ना ही बेहतर है. आपके पिताजी को कोई तकलीफ़ है? बोले हाँ ब्लड प्रेशर है. तो उनसे कहते हैं देखिए उसका एक कारण ये भी है, आपको भी भविष्य में हो जाएगा. आप मैरिड हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका परिवार सफ़र करेगा. इट कम्स बैक टू काउंसलिंग. तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए एक एक पॉइंट बाद में लेंगे. तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए. स्मोकिंग नहीं होना चाहिए. स्मोकिंग में बहुत तरह के खतरे हैं. हार्ट तो एक है, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर. जो लेडीज़ स्मोक करती हैं प्रेगनेंसी में, उनके अलावा फीटस को, बच्चे को खतरा है. शुगर अनकंट्रोल्ड है, हार्ट डिजीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है. डायबिटीज़ को हम लोग कहते हैं शरीर में घुन लगना, वो ऊपर से लेकर नीचे तक किसी अंग को नहीं छोड़ती. और सबसे ख़राब बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स को जब हार्ट अटैक होता है तो उनको छाती में दर्द नहीं होता, या अलग तरीके से होता है, उसकी भी बात करेंगे. क्योंकि उनकी नस डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाती है और वो पेन सेंसेशन लेके नहीं जाती हैं. डायबिटिक पेशेंट ऐसा बैठा है आपसे बात कर रहा है, एकाएक अंधा हो गया, उसका रेटिना डिटैच हो गया या आईज में ब्लीड हो गया. ही डजंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, उसको नहीं समझ में आ रहा है. बाद में टेस्ट कराया तो मालूम पड़ता है वो डायबिटिक है. तो ये भी जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनको कंट्रोल करना. डाइट के बारे में भी बात करेंगे कि डाइट को कैसे कंट्रोल करना है, पॉइंट वाइज देखते हैं उसको भी. तो पहला जो मेरा उत्तर है आपके उसके लिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में हैं
उनको या तो ड्रास्टिकली कंट्रोल कर लें या उनको एलिमिनेट कर दें अपनी लाइफ से। दो ही रास्ता है। तो पहला रास्ता ये कि एलिमिनेट कर दें, भूल जाएं उसके बारे में, और नहीं तो रिडक्शन इतना कर दें कि वो नॉन इफेक्टिव हो जाए। Thank you so much, sir. Sir, as you said that the modifiable things we can avoid or eliminate from our life in order to secure our heart or to have the healthy heart. But if it's non-modifiable, let's say like you had said in your briefing of the topic, some disease are modifiable. That is, it could be a genetic or it could be some other factors, sir. So, sir, then what are the precautions that to be taken while protecting our heart and our life, sir? तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये जानना चाहते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। देखिए, पहला जवाब तो है कि नहीं कर सकते हैं, पर उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, ये तय बात है। यू कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन। जो हमारा शरीर जिस रफ्तार से डीजनरेट हो रहा है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, और उसके लिए जो इंडियन पद्धति है योगा की और मेडिटेशन की, ये बहुत मदद करती है। बॉडी तो डीजनरेट करेगा, आप नेचर को नहीं जीत सकते, ये नेचुरल प्रोसेस है। आप अमर नहीं है कोई भी, हमेशा आप में से। तो प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट यू कैन स्लो डाउन, आप उसको धीमा कर सकते हैं ताकि आप अपनी औसतन आयु एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरह जी सकें। और उसके लिए योगा और मेडिटेशन एडवोकेट किया जाता है, और उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, इंडिया में नहीं विदेशों में भी है, और योगा विदेशों में भी इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस है कि बॉडी के अंदर जो डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं वो धीमे हो जाते हैं योगा और मेडिटेशन करने से। पर ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये वर्षों की तपस्या है। ये आपको करना पड़ेगा, नियमित रूप से करना पड़ेगा, तब उसका लाभ आपको मिलेगा। आज हार्ट अटैक हो गया, आज से आपने योगा शुरू किया, सोचें कल उसका इफेक्ट मिल जाए, दवा छूट जाए, डॉक्टर छूट जाए, हार्ट फिर से जवान हो जाए, संभव नहीं है। पर जब भी आप शुरू करेंगे तो उसके बाद भी जो डिजनरेटिव प्रोसेस है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, जो मैंने कहा जीन है, जीन के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं पहले ही कह चुका हूँ, और फिर से मैं आप सबको याद दिलाता हूँ कि अगर जीन है तो आपको सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, क्योंकि वो जो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, स्मोकिंग, तंबाकू खाना, ये नॉन मॉडिफाइबल यानी जीन को जल्दी रप्चर होने में या जल्दी एक्टिव करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो ये संभावना है, ये नियम नहीं है, फर्क है। नॉट एज ए रूल बट एज ए पॉसिबिलिटी दैट द जीन विल लाई डॉर्मेंट, वो जीन बहुत समय तक डॉर्मेंट रहेगा, ताकि हम अपना औसतन आयु जो हमारे देश में अब लगभग 70 वर्ष हो रही है, हम 70 वर्ष तक पहुंच जाएं, और जो भी हमारी ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं और लाइफ को जीने का जो आनंद होता है वो हम 70 वर्ष तक उठा सकें। यही हो सकता है। Thank you, sir. I agree with you, sir. And RCVP नरोना एकेडमी का एक पंच है, टैग लाइन है, योग कर्मेसु कौशलम। सो हम योग और मेडिटेशन से, जैसे आपने बताया, तो मैं आपको अवेयर कराना चाहूँगी सर, आपको एक्नॉलेज करना चाहूँगी, और जो भी हमसे वर्चुअली कनेक्टेड है मैं उन सबको बताना चाहूँगी कि एकेडमी में योग जो है वो हर ट्रेनीज़ को करवाया जाता है। इसके अलावा सर हमारे डीजी सर द्वारा उनकी गाइडेंस में जो है हमने मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस जो है खाली ट्रेनीज़ के लिए नहीं सिर्फ बट एकेडमी स्टाफ के लिए हमने जो है इसको स्टार्ट किया है सर।
ये बहुत अच्छी प्रेरणा आप देती हैं अपनी ट्रेनीज़ को, एंड आई एम श्योर कि जहाँ से जो सीख के जाते हैं तो वो नियमित रूप से Yes, sir. अपने जीवन में उसका पालन करते लाभ हैं। उठाते हैं सर. So moving to the next thing in the lifestyle modification, when we have to secure our heart, it's very necessary that diet plays a very important role into it. So sir, my question is that how does a balanced diet contribute to a healthy heart, sir? देखिए, बैलेंस डाइट ये एक अंग्रेजी का शब्द है। खाना वो है हम जो खाते हैं, बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बैलेंस का मतलब होता है तराजू में तौल के खाइए, ऐसा नहीं है। हमारा देश इतना बड़ा है कि हर 4 जिलों के बाद में खान पीन हमारा बदलता जाता है, पर मोटा मोटा खाने पीने का जो प्रोसेस है वो ये है कि हम हिंदुस्तानीज़ हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं। वो है फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स। हम इनको एक लग्जरी के रूप में देखते हैं। हाँ, फल खा लेंगे, ग्रीन्स कोई ज़रूरत नहीं है, खा लिया, अच्छी मसाले की सब्जी कोई खा ली, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रिमिटिव डेज से जाएं तो इंसान एक चिंपैंजी से माइग्रेट हुआ है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में मेटामॉर्फोसिस के बाद बना है, और चिंपैंजीज आर बेसिकली वेजिटेरियंस। आज हमारा सिस्टम एग्जैक्टली वही है। और कभी आप प्रैक्टिकली सोचिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं तब आप मटर पनीर, बटर मसाला ये सब तो नहीं मांगते हैं खाने में, खिचड़ी मांगते हैं, फल मांगते हैं, फ्रूट जूस मांगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए कि जब आपका शरीर क्राइसिस में होता है तो अपनी प्राकृतिक या नेचुरल डाइट डिमांड करता है, ये दो, नहीं तो हम अच्छे नहीं होंगे। और आप वो देते हैं, शरीर उसको ही हजम करता है, क्योंकि उस वक्त उसी प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे जो शरीर में नेचुरली बने हैं या प्रिजर्व्ड हैं टू फेस द क्राइसिस। तो डाइट में एक बात का पक्का करें, आप चाहे वेज खाएं चाहे नॉन वेज खाएं, क्वांटिटी का अगर सवाल है जो मैम ने पूछा बैलेंस डाइट में, तो मोटे तौर पे फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों का मिश्रण से डाइट बनती है। पर उसका एक महत्व और भी है कि आप कभी भी जब खाना खाएं तो ऐसा लगे आपको कि अभी आप और खा सकते हैं और खाना छोड़ दीजिए। आप कभी सोचिए कि आप लोग भी सब यंगस्टर्स हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, जब खा पी के निकलते हैं तो कहते हैं आज बहुत खा लिया। खाते वक्त नहीं कहते कि बहुत खा लिया, खाने के बाद कहते हैं। होता है ना ऐसा? तो ऐसा क्यों होता है? पेट की जो कैपेसिटी है उसको 15 मिनट लगते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजने के लिए कि आई एम ओवरफुल, ये मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा है। और वो इसलिए कि उतने खाने को हजम करने के लिए मेरे पास गैस्ट्रिक जूसेस नहीं है, ईंधन नहीं है उसको हजम करने के लिए। और वो एक कॉज होता है इंडाइजेशन, वो एक कॉज होता है फैट एक्युमुलेशन का, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस पूरा इफेक्ट हो गया। तो जब भी खाना खाएं, ये हमेशा ख्याल रखें कि आप खाना तब छोड़ दें जब आपको लगे कि अभी आप और थोड़ा खा सकते हैं। खाने के लिए कोई, मैं किसी भी व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं देता हूँ। नॉर्थ का खाना अलग है, साउथ का अलग है, बंगाल का अलग है, गुजरात का अलग है, और सभी को उस खाने का टेस्ट है। कई बार जब चर्चा होती है लोग कहते हैं मदर्स टंग, भाषा के ऊपर कहते हैं, मैं कहता नहीं, गलत है, इट्स मदर्स फूड। हर माँ
अपने बच्चे को सबसे अच्छा खाना खिलाती है, और वो जो खाना खिलाती है बच्चे के टेस्ट बड्स उसके हिसाब से कंडीशन हो जाते हैं। हम लोग इस उम्र में भी कहते हैं मेरी माँ ये चीज़ अच्छा बनाती थी, पत्नी चाहे कितना भी अच्छा बनाए पर कह देते हैं। सभी के साथ होता है कि वो जो टेस्ट बड्स बचपन के मॉडिफाई होकर के आते हैं, तो माँ सबसे अच्छा खाना खिलाती है, चाहे वो अनपढ़ हो, कुछ भी हो। माँ को एक स्पेशल फैकल्टी ईश्वर ने दी है, हाउ टू प्रिजर्व द प्रोजेनी। वो उसको प्रोटीन भी देगी, उसको कार्बोहाइड्रेट भी देगी, उसको फैट भी देगी, सब कुछ देगी, और बच्चे को बड़ा करके खड़ा कर देगी। फिर बच्चा क्या रेसिप्रोकेट करे माँ को वो नहीं पता है, पर माँ अपना काम कर देगी। तो फूड हैबिट्स जो होती हैं उस पर डिपेंड करती है। और बड़ों को जैसे कहते हैं कि आप नॉर्थ के आदमी को ये तो नहीं कह सकते तुम इडली डोसा खाओ, और साउथ के आदमी को ये नहीं कह सकते तुम छोले भटूरे खाओ, बंगाल के आदमी को ये नहीं कह सकते तुम ढोकले खाओ, गुजरात के आदमी को नहीं कह सकते तुम माचर झोल खाओ। तो सबके अपने अपने फूड हैबिट्स हैं। तो आपको जो भी गाइडलाइंस देना है उन्हीं फूड खाने के अनुरूप आपको देना है। अगर आपने खाने के अनुरूप उनको गाइड नहीं किया तो वी डोंट नो, कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो ऑल्टरनेटिव फूड को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो खाने का ये है कि जो आप खाते रहे हैं उसी को लीजिए, और उसी में अब प्रश्न होता है कि एक डाइट चला है नमक के ऊपर, एक डाइट चला है कि फैट के ऊपर। तो मैं समझता हूँ आप ज़रूर कुछ ना कुछ, लग रहा है कि आप इस पर कुछ पूछने वाली हैं, तो पूछ लीजिए। हाँ पूछिए। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसी पे लाइन अप है कि व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ सोडियम इनटेक, बिकॉज आजकल कहा जाता है, हम सब इस चीज़ को सुन रहे हैं, अपने घरों में कहीं ना कहीं या सराउंडिंग्स में देख रहे हैं कि इट इज़ बीइंग सेड दैट द इनटेक ऑफ द सोडियम, नमक की मात्रा जो है वो कम रखनी चाहिए, जिससे आप अपने हार्ट को सिक्योर कर सकते हैं। और सर इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा कि समटाइम्स वी ऑब्जर्व, आई थिंक किसी ना किसी ने अपनी सराउंडिंग्स, नोइंग्स या फैमिली में ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन द सोडियम लेवल ऑफ द people who are above 60 goes down. So how to manage the level of sodium? Because आजकल सोडियम के लिए कहा जाता है कि it's a white poison. So sir, what should be the balanced intake of the sodium, not for the ones who are suffering from the cardio diseases or the heart diseases, but also for the young generation and also for the people of every age. So आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत ही कॉमन सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे 100 में से 100 मरीज पूछते हैं। हमारे लिए कोई नया नहीं है उसका उत्तर देने के लिए, इट्स ए प्रिविलेज टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो सामान्य रूप से आप ये समझें कि नमक से पहले पॉइजन तो हटा दीजिए, पॉइजन नहीं है। नमक हमारे शरीर का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। बिना नमक के हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता, हमारा हार्ट काम नहीं कर सकता। पर नमक की मात्रा कितनी हो वो आवश्यक है। नमक का लॉस हमारे शरीर में गर्मी में पसीने के माध्यम से होता है, बहुत अधिक होता है। आप गर्मी में घूमते हैं, काम करते हैं, पसीना आता है, नमक यहाँ से लॉस हो जाता है पसीने के साथ में। दूसरा, यूरिन में और फीसिस में भी सॉल्ट का थोड़ा थोड़ा अंश जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर गर्मी है, नॉर्मल कंडीशन में गर्मी नहीं है, तो 6-7 ग्राम सॉल्ट एक आदमी ले सकता है प्रतिदिन। गर्मी में हम उसको बढ़ा के 10 से 12 कर देते हैं, क्योंकि पसीने में नुकसान होता है। ठंड में क्योंकि पसीना नहीं आता है तो बॉडी सॉल्ट को कंजर्व करता है। या कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह, उसमें 3 से 4 ग्राम के लगभग हम लोग रिकमेंड करते हैं। अब गृहिणियाँ अक्सर हमसे पूछती हैं, जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, कि सर 3-4 ग्राम नमक तौल के दें क्या? अब तौलने के लिए तो केमिकल बैलेंस चाहिए।
आप रोज़ तराजू लगा के डाइनिंग टेबल पे बैठिए, तौलिए और दीजिए पतिदेव को या जिसको भी देना है उनको दीजिए। तो उसका एक प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि अगर आपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट किया है इन सर्टेन कंडीशंस, किसी को ब्लड प्रेशर है या अन्य हार्ट डिजीज़ है यहाँ पर नमक कम देना है, तो सवाल ये है कम मतलब कितना कम, ये है। सो 2 से 3 ग्राम से कम नहीं देना है। अब 2 से 3 ग्राम नमक तौल के नहीं दिया जा सकता हिंदुस्तानी घरों में, तो आप उनसे कहते हैं कि देखिए आपका जो भी 2 खाना है, लंच और डिनर, उसमें जो भी नमक पड़ता है वो आप पूरा खाएंगे। सब्जी में, दाल में नमक जो पड़ता है, जो सब लोग खा रहे हैं वो आप पूरा खाएंगे। ये मोटा मोटा 203 ग्राम हो जाता है। पर आप नमकीन चीज़ नहीं खाएंगे। नमकीन चीज़ क्या है? जिसमें सॉल्ट प्रिजर्व्ड है, अचार, पापड़, तले हुए सेव, खारे नमकीन जो बाज़ार में मिलते हैं, ऑयल के साथ जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट होता है, या ऐसा खाना जहाँ पर सॉल्ट को यूज़ किया है एज ए प्रिजर्वेटिव एलिमेंट, वो खाना नहीं खाएंगे। अच्छी बात है, खाना बन रहा है, दाल सब्जी में नमक खा लीजिए। दूसरे जो बहुत कुशल गृहणियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसा खाना बनाती हैं जिसमें आपको नमक की कमी महसूस नहीं हो। घर का ताज़ा दही है, आप न्यूट्रल फेज में खा सकते हैं, ना शक्कर की ज़रूरत है ना नमक की ज़रूरत है, वो खा लीजिए। पालक, इसमें नेचुरल सॉल्ट होता है, आपको ऊपर से सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। पत्ता गोभी है, मेथी है, इसकी सब्ज़ी, इसमें नेचुरल सॉल्ट होता है। तो बहुत कुशलतापूर्वक आप बिना ये सब लफड़े में पड़े हुए कि 2 से 3 ग्राम है, 4 ग्राम है, आप अपने सॉल्ट का कंट्रोल घर में कर सकते हैं और इससे सॉल्ट की कोई डिफिशिएंसी नहीं होगी। आपका जो सवाल था कि सॉल्ट ओल्ड एज में कम हो जाता है, इसका जो मूल कारण है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी पेट की कैपेसिटी कम हो जाती है। जो पहले 4 रोटी खाता था वो 1 रोटी खाता है, इतनी सब्ज़ी खाता है तो अब उसका 50% खाता है। तो नेचुरल वे में सॉल्ट इनटेक एक तो कम हो जाता है, जबकि बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी ही बनी हुई है। तो इट इज़ ए रिलेटिवली लेस, इट इज़ नॉट लेस इन प्रोपोर्शन टू योर एज एंड योर एपेटाइट। जो आप खा रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में वो कम दिखता है। दूसरा ये होता है कि कई दवाई ऐसी होती हैं जिसमें आप यूरिन के जरिए नमक को ड्रेन आउट करती हैं। वो दवाई को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उससे कितना सॉल्ट आपका निकल रहा है, तो उन दवाई के डोज को ऑल्टर कर दें। और अगर बहुत ज़रूरी है उन दवाओं को लेना तो फिर एडेड सॉल्ट, डॉक्टर बता देता है भाई दवाई तो आवश्यक है, इसमें जो भी आपका सॉल्ट का नुकसान होगा आप उसको इस तरीके से, उसकी टैबलेट्स आती हैं वो आप ले लीजिए। पर एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जो भी आप टेस्ट कराते हैं लैब के अंदर और जो पेपर दिखता है उस पर कभी 100% विश्वास मत करिए, क्योंकि उपचार पेपर का नहीं हो रहा, उपचार इंसान का हो रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं कि वाइज क्लिनिशियन या गुड डॉक्टर विल इग्नोर द इन्वेस्टिगेशन विच डज नॉट फिट इनटू हिज क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब कोई रिपोर्ट लेके आ गया सोडियम की 110, हमारा मरीज चल फिर के आ रहा है, उसको कोई लक्षण नहीं है, दिमाग ठीक है, मसल्स ठीक है, तो हम उस 110 को इग्नोर कर देंगे। उससे पूछेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं कि नमक कम हो गया, तो हाइपोनेट्रीमिया के कोई आपको सिम्टम्स हैं, ये आपकी स्किल के ऊपर है कि आप उसको कैसा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। और अगर आपको लगता है प्लस माइनस है, आप उससे उसको रिपीट करने को कह सकते हैं, भाई इसको आप रिपीट कर लीजिए और रिपीट करके फिर देख लीजिए अगर परपेचुअली कम आता है या मरीज़ को कोई लक्षण है उसके, तो उसका अवश्य इलाज करिए। इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होती है सोडियम कम होना, और अगर वो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत है, तो कोई बात नहीं, उसको सॉल्ट बढ़ा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्ट को मैनेज कर सकते हैं। गोइंग टू कीप दिस इन माइंड कि हमारे घर में, परिवार में, आसपास में जो सराउंडिंग है उसमें आपने जो आज हमसे बात शेयर करी, वील कीप दिस इन माइंड एंड मेक श्योर कि कोई भी हाइपोनेट्रेमिया से अफेक्टेड ना हो ऑन द बेस्ट पार्ट।
सर हम हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं एंड वी हैड टॉक्ड अबाउट व्हाट शुड बी द important lifestyle changes. Then we had talked about the role of the diet, role of the sodium. So इन सब में कहीं ना कहीं खाने की जब बात हो रही है, so physical fitness is also must. So nowadays it is being observed that people who are doing the workout in the gyms and all, or if they are doing any sort of exercises, and all of a sudden they are getting this heart attack. So sir, I would like to ask you that how much exercise per day is actually recommended to keep our heart healthy and not to have the cardio attack while working out, sir? ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और कई लोग हमसे पूछते हैं आकर के कि भाई आप ये जिम में क्या करना चाहिए और जिम में ऐसा हो गया, ऐसे नेगेटिव खबर लेके आते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, जिम जाने के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, पर जिम जाने के लिए क्या सावधानी लेना है वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हर व्यक्ति जिम जाने से पहले क्या सावधानियाँ ले। स्वयं की सावधानी, जैसे आप में से कई स्विमिंग पूल जाते हैं तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, आप फिट हैं, आपको स्किन डिजीज़ नहीं है। जिम के लिए कोई लगता है क्या? You just walk into the gym, आप सीधे चले जाते हैं। तरह तरह के उपकरण रखा है, लाइक ए टॉय शॉप, जो समझ में आया ये उठा लिया, ये रख दिया, ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। तो जिम जाने से पहले उम्र आपकी कुछ भी हो, कोई भी उम्र हो आपकी, आपका एक थॉरो मेडिकल चेकअप होना चाहिए। उसमें आपके जॉइंट्स का चेकअप होता है, आपके स्पाइन का चेकअप होता है क्योंकि आप दौड़ेंगे, और आपका ईसीजी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तो नहीं है क्योंकि डायबिटीज़ तो कई बार ये होता है कि दौड़ते दौड़ते एकदम बीपी डाउन हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो पहले आपको अपने इंटरेस्ट में पहले ये देखना है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं है जिम जाने के लिए। ये एक पहला वो चीज़ है। जब आप मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाएं तो फिर ये देखिए कि जिम मेडिकली फिट है कि नहीं आपको लेने के लिए। जिम में कौन है वहाँ पर कोई इमरजेंसी रूम है, कोई बेड है, कोई एक पैरामेडिकल स्टाफ है। इमरजेंसी में जो आपको आवश्यकता पड़ती है उसके लिए मात्र आपके पास में 3 से 5 मिनट का समय होता है। तो 3 से 5 मिनट के समय में कौन आपकी मदद कर सकता है? जो आपका नेक्स्ट डोर खड़ा है और कोई नहीं आ सकता। विदेशों में भी 3 से 5 मिनट में आपको, आप वहाँ एक इमरजेंसी नंबर होता है 911, आप वो कॉल, वो भी नहीं, वो भी आते हैं पर उसमें भी टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको देखिए पर्सन नेक्स्ट टू यू, क्या वहाँ पर कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, क्या वहाँ पर एक ड्रिप सेट का इंतज़ाम है, क्या वहाँ इमरजेंसी ट्रे है। आजकल आप जाएंगे जिम में जगह जगह आपको एक डिफिब्रिलेटर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट देके हार्ट को चलाता है। मैं ये कहना चाहूँगा हर हार्ट को चलाने के लिए उस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो मशीन जो लगी हुई है वो मशीन रोज़ तो उपयोग होती नहीं है, लगी हुई है। जो ट्रेनर है उसको आता है कि नहीं आपको नहीं मालूम। हो सकता है आपके ऊपर ही वो नई मशीन पहली बार यूज़ हो किसी के ऊपर। तो ये इंश्योर करना चाहिए जिम को भी। अभी प्रोटोकॉल्स हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो ज़िंदगी में कभी भी जिम नहीं गया, ना आप जाने की कोई इच्छा है इस उम्र में। पर जिम को बनाने के लिए भी एक प्रोटोकॉल चाहिए कि वहाँ पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रेनर होता है, ही इज़ नॉट फिट टू गिव एन एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, और एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन इज नेवर जनरलाइज्ड, इट्स ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड। हम जिम में क्या करने जा रहे हैं पहले तो आपको तय करना है।
आप मैराथन दौड़ने जा रहे हैं तो अलग एक्सरसाइज शेड्यूल है, आप बॉडी बनाने जाना चाह रहे हैं तो उसका अलग शेड्यूल है, आपको वेट कम करना है उसका अलग शेड्यूल है, पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज जाती हैं उसका अलग शेड्यूल है, किसी को जॉइंट पेन है, बैक एक है, उसकी लिमिटेशंस अलग है। क्या आप सोचते हैं कि 30 वर्ष का व्यक्ति और एक 50 वर्ष का व्यक्ति एक सा एक्सरसाइज शेड्यूल कर सकता है? नहीं कर सकता है। सो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली टेलर मेड फॉर एन इंडिविजुअल। कोई आपकी हिस्ट्री नहीं लेता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप बाहर निकलते हो, पहले मैं इतना करता था, अब मैं इतना करने लगा हूँ। इसको कहते हैं एक फॉल्स सेंस ऑफ ग्लोरिफिकेशन। पहले 40 मिनट करता था, अब मैं 50 मिनट करता हूँ। पहले मैं 5 किलो उठाता था, अब मैं 20 किलो उठाता हूँ। बट आर यू रियली बेनिफिटेड? तो एक्सरसाइज अगर आपको जिम में जाना है, मेक श्योर दैट यू आर फिट मेडिकली, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटीज टू मीट एन इमरजेंसी इन द जिम। वहाँ पर एक पैरामेडिकल स्टाफ हो या जो ट्रेनर है वो खुद पैरामेडिकल में ट्रेंड हो, और वहाँ जा कर के अपने इंटरेस्ट में एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनवाइए कि हम कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन कौन सी कर सकते हैं। उसको कुछ दिन ट्रायल करिए, ट्रायल के बाद में उसको मॉडिफाई करिए, क्योंकि एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद में आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, ना कि बर्डन। एक तो ये, और जो सबसे सिंपलर चीज़ होती है जो हम लोग सबको एडवोकेट करते हैं वो है सिंपल वॉकिंग सुबह के वक्त। उसका रीज़न ये है कि मॉर्निंग में पोल्यूशन कम होता है, ऑक्सीजन लेवल्स नीचे होते हैं। अगर आप सुबह निकलते हैं वॉकिंग के लिए, छोटी छोटी सावधानियां हैं। अच्छे जूते पहनिए, उसके साथ में कॉटन के मोटे सॉक्स पहनिए, नायलॉन के सॉक्स मत पहनिए, क्योंकि जब आप चलते हैं तो पसीना निकलता है, तो कॉटन के सॉक्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो सॉक्स पहन के आप अपनी स्पीड से चलिए। ये मत देखिए कि आपसे ज़्यादा उम्र वाला तेज़ जा रहा है, जो आपकी स्पीड है। और एक घड़ी से 45 मिनट्स का राउंड कर लीजिए, उतना काफ़ी है, जो भी आपकी उम्र है। उससे ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे थक जाएंगे, और खाएंगे आके जो कैलोरीज आपने लूज़ की है वापस रिगेन हो जाएंगी। 45 मिनट्स वॉकिंग एट योर ओन स्पीड विद गुड फुटवेयर अच्छे होना चाहिए, जिसमें आपके पैरों में थकान नहीं आए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जो जिम जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने बता दिया है। और बताइए। Sir, actually, with your insightful knowledge, that was the awakening alarm for every one of us, because nowadays youngsters are more focused or more attracted towards the gym. So next time when we'll be going to gym for doing our workouts, it's like now we'll keep a checklist with us, what is to be done, and how we can check the efficiency of the gym trainer as well as of that particular gym, Yes. whether they are medically equipped for that particular thing which can happen to anyone at any point of time. That's for your own safety. Yes, sir. So, sir, I think I should open the forum for our officer trainees, that one of our officer would like to ask a question. I think he is very curious. So, yes, you can ask. You can tell your name and then you can ask your question. Respected sir, Jai Hind. My name is Subham Jain. Sir, you have mentioned some of the modifiable risk factors. Also, you have mentioned some are not modifiable control factors. हिंदी में पूछो आराम से। Yes, sir. Question ये था कि in recent past में सर क्वेश्चन ये था कि रिसेंट पास में देयर आर लॉट मैनी केसेस दैट मैनी यंग एज पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दीज हार्ट रिलेटेड डिसीजेज। सर तो ये इसका क्या सर, और देखने में ये भी मिलता है कि ना वो सर वो एल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम करते थे, ना इधर दे आर सर डायबिटिक एंड ऑल। सर देन टू ऑल ऑफ सडन अ केस हैज केम दैट एक्स पीपल हैज डाइड बिकॉज ऑफ दीज हार्ट रिलेटेड डिसीजेज। सर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट सर? ये है कि हार्ट अटैक और सडन डेथ जो होती है आज के ज़माने में वो एज रिलेटेड नहीं रही,
यंग एज में होती है जैसा आपने कहा, और उनको कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और एकाएक उनकी डेथ हो जाती है। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि द हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स, हार्ट के कारण होते हैं, वो कारण आपने मौके पे डिटेक्ट नहीं किया। एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स यानी तकलीफ ना होना, हार्ट डिजीज़ ना होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि हमारे यहाँ मेडिकल चेकअप हो। हम बीमार होने के बाद में अलर्ट होते हैं मेडिकल चेकअप के लिए। कितनी जगह प्री स्कूल चेकअप होता है, कितनी जगह प्री कॉलेज मेडिकल चेकअप होता है, सिस्टम नहीं है। अगर ये चेकअप होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बीमारी निकलेगी, और वो पैदाइशी भी होती है, कई बार जैसा मैंने कहा जेनेटिक भी होती है। तो नॉर्मल कोर्स में वो जीन रप्चर कर गया और डेथ हो गई। तो अगर एक बड़े सेगमेंट का आप असेसमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से एक सेगमेंट 2%, 4%, 5% ऐसी बीमारियां निकलेंगी जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है, वो केवल हालातों के अनुरूप उभर के आएंगी और एकाएक मृत्यु दे देंगी। तो इसलिए आवश्यक है कि पीरियोडिक मेडिकल चेकअप किया जाए। एक जनरल रिकमेंडेशन जो हम लोग कहते हैं कि 20 साल में 2 बार, 30 साल में 3 बार, 40 साल में 4 बार, 50 साल में 5 बार, 60 साल में 6 बार, और 70 साल में 7 बार, और 80 साल में कोई बार नहीं, 9 बार। जो 80 पहुंच गया उसको क्या ज़रूरत है, तकलीफ वो तब चला जाएगा अस्पताल को। पर 80 तक पहुंचने के लिए एक मोटा मोटा प्रोटोकॉल ये रहता है कि आपको डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए, ना कि जब तकलीफ़ हो। जब तकलीफ़ ना हो तब जाइए, इसको कहते हैं टीका लगाना। तकलीफ़ के बाद तो टीके का महत्व ख़त्म हो जाता है। लाभ मिलेगा कि नहीं इलाज का मालूम नहीं, शरीर रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं इलाज के उपरांत ये भी नहीं मालूम है। तो सिंपल आजकल शासन ने इतने सारे क्लिनिक्स बना दिए हैं, फ्री क्लिनिक्स हैं, जगह जगह डिस्पेंसरी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई हुई हैं। भोपाल में तो और अच्छा है, मेडिकल कॉलेज है, आजकल मेडिकल कॉलेजेस भी खूब हो रहे हैं, जिला अस्पताल डेवलप कर रहे हैं। तो आपके पास में दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप शासन से संबंधित चिकित्सालयों में जा सकते हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो चेकअप से मुँह ना मोड़िए, चेकअप करा लीजिए। चेकअप कराते रहेंगे तो सुरक्षा का कवच मजबूत ही होगा, कमज़ोर नहीं होगा। I think ये एक ऐसा टॉपिक है which can goes on and on, but time is actually stopping us. So first of all, I would like to thank our guest of the day, Dr. Yogesh Verma sir, for giving his valuable and important time to all of us. So thank you so much, sir, because I know sir is very busy in his schedule. So thank you, sir, for taking your time out and sharing your experiences with us, and कहीं ना कहीं आपने हमें अलर्ट किया है, एक्टिव किया है, और हमें एक लर्निंग भी दी है कि कैसे बीइंग द यंगस्टर्स वी कैन प्रोटेक्ट आवर हार्ट बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इन आवर लाइफस्टाइल। सो अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए एक बात कहना चाहूँगी। एक छोटी सी लाइन है आज के इस वेबिनार के लिए, दैट इफ़ यू आर हैप्पी देन एवरीवन इज हैप्पी, but I say with this webinar, keep your heart happy, then not only you but your surrounding will be happy. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको अपने कैरियर में बहुत उन्नति करने की बधाई देता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बधाई देता हूँ, कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें। आप ही देश का भविष्य हैं और आप ही के कंधों पे हमारा देश आगे प्रगति करेगा। तो ये ख्याल रखिए, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा था कि मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से या जहाँ भी जाता हूँ कुछ सीख के जाता हूँ, कई बार बातचीत के द्वारा और कई बार साइलेंस के द्वारा। तो आपके साइलेंस ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है
बहुत बहुत धन्यवाद।